Hello dear students, here is Naveed Ahmed Seto once again before you. We are going to start this new text number 3, the name tree from 9th textbook. The name tree is generally a poem. It is composed by Mrs. Elsa Kazi. Mrs. Elsa Kazi was the wife of Allama I.I. Kazi, the former Vice Chancellor of Sindh University. She was German in national point of view. She belongs to Germany. She met Allama I.I. Kazi in 1907 in London, and both they married in 1910. After meeting in London, they decided to marry. Now, what's about before coming to these main points regarding to this poem, I would like to explain the summary of poem, the structure of poem, then we should move forward. The name tree in Sindhi, Nim Jo Van. Nim Jo Van, written by, once again I remind you, Mrs. Elsa Kazi. What about this poem is in which structure it is composed by Mrs. Elsa Kazi? First of all, we should know. It is composed in one of the familiar figures of speech in English literature, personification. What is personification? Here is the word personification. It is the figure of speech. It is a figure of speech in which non-living things or objects, non-living objects or things are represented as a living object or thing, as living objects or things. बाबा हीअ अहिड़े क़िस्म जी पर्सोनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच आहे जंहिंमें गैर जानदार शयुनि खे ईअं पेश कयो वेंदो आहे जीअं जानदार शयूं हुजनि. त हाणे असां नेम ट्री सॼो मुकमिल इहो लिखियल ई पर्सोनिफिकेशन में आहे. एल्सा काज़ी हैज़ कंपोज दिस पोएम इन ओनली वन फिगर ऑफ स्पीच, दैट इज़ नोन एज personification. Personification is one of the figures of speech that is made from person. From the name we can have idea that it is taken from person. Personification. Person means the qualities of person. When we talk about a non-living thing, is the listeners think we are talking about living things. That is called personification. Very simple. बाबा असां गैर जानदार शइ मुतलिक़ ॻाल्हायूं पर ॿुधण वारो ईअं सम्झे त असां जानदार शइ जे बारे में ॻाल्हाए रहिया आहियूं, उहा पर्सोनिफिकेशन आहे. मिसाल ॾियां तव्हांखे, हाणे हीउ जेको नेम ट्री आहे, हाँ मिसाल तव्हांखे ॾियां पर्सोनिफिकेशन जो. ॾिसो, अपॉर्चुनिटी नॉक्स एट द डोर बट वंस. ख़ुशकिस्मती दरवाज़ो खड़काईंदी आहे पर हिकु दफ़ो. हाणे तव्हां ॿुधायो त ख़ुशकिस्मती का माण्हू आहे या छोकिरीअ जो नालो आहे, उहा दरवाज़ो खड़काईंदी आहे रुॻो हिकु दफ़ो, वरी ईंदी ई कोन्हे का. माना ख़ुशकिस्मतीअ जे बारे में असां ईअं ॻाल्हि था कयूं त इहा ॼण त लिविंग थिंग आहे. Opportunity knocks at the door but once we are talking about, it means we are talking about living things.
but it is not a living thing. It is non-living thing, but we represent it as a living thing. So similarly, the name tree is also represented by Mrs. Elsa Qazi, or we can say composed by Mrs. Elsa Qazi in the form of personification. The readers or listeners, after reading it, or while they are reading it, they consider or they think that either we are reading about a living person. We are not living about a tree, but we are living about a living person, because the qualities are mentioned of name tree as compared to the man, as compared to the persons. That is why it is written in, it is composed in personification. मां तव्हां सभिनी खे हिकिड़ी ॻाल्हि सिंधीअ में ॿुधायां त हीउ बाबा जेको नज़म आहे, मां ओनली 2 स्टैंजास लिखियूं आहिनि, 2 स्टैंजास लिखियूं आहिनि. हीउ नज़म पर्सोनिफिकेशन में लिखियलु आहे. पर्सोनिफिकेशन छा आहे? फिगर ऑफ स्पीच आहे. फिगर ऑफ स्पीच छो इस्तेमालु कई वेंदी आहे? उनजी हिकिड़ी हिडन मीनिंग हूंदी आहे, यानी उनखे असां इडियमेटिक मीनिंग चवंदा आहियूं. इडियमेटिक मीनिंग हूंदी आहे, उनजे लाइ असां फिगर्स ऑफ स्पीच राइटिंग में इस्तेमालु कंदा आहियूं. जंहिंजे करे हिन जी डेफिनेशन इहा आहे त इट इज़ अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स आर थिंग्स आर रिप्रेजेंटेड एज लिविंग ऑब्जेक्ट्स आर थिंग्स. माना असां उन फिगर ऑफ स्पीच में नॉन लिविंग थिंग्स खे ईअं पढ़ंदा आहियूं जीअं असां लिविंग थिंग्स जे बारे में पढ़ी रहिया आहियूं. हाणे नेम ट्री जूं क्वालिटीज़ जेके मिसिस एल्सा काज़ी एक्सप्लेन कयूं आहिनि पोयम में, तव्हां यकीन कयो जॾहिं पढ़ंदासीं तव्हां सम्झंदव त वी आर रीडिंग अबाउट पर्सन बट नॉट नेम ट्री. असां निम जे वण जे मुतालिक़ ॿुधी पढ़ी नथा, असां त निम जे वण में जे मुतालिक़ त नथा पढ़ूं, असां त कंहिं माण्हूअ जूं ख़ूबियूं था पढ़ूं, कंहिं शख़्स जूं ख़ूबियूं था पढ़ूं. सो दिस इज़ कॉल्ड पर्सोनिफिकेशन. नाउ द पोयम स्टार्ट्स फ्रॉम हियर, बट बिफोर स्टार्टिंग पोयम, here I have written down main points regarding to biography of Mrs. Elsa Qazi and introduction of poem. Here is number 1 point. Mrs. Elsa Qazi was born at Weimar in Germany. Weimar, why we have written here at Weimar in preposition in Germany? Because Germany is the name of country. We can use in with names of countries. We can use at with small towns or cities. That is why Weimar is a small town of Germany. That is why we have written here at preposition. बाबा एट preposition नंढनि शहरनि सां इस्तेमालु थींदी आहे ऐं कंट्री सां इन थींदी आहे. तंहिंजे करे नंढे शहर वेमर में ॼाओ, इन कराची. मिसाल तौर मां तव्हांखे ॿुधायां मां किथे ॼायो आहियां? मां राणीपुर में ॼाओ आहियां. किथे ॼाओ आहियां? राणीपुर में. नंढो शहर आहे, सही आहे. राणीपुर में मां राणीपुर में पाकिस्तान में ॼाओ आहियां. राणीपुर पाकिस्तान में आहे न, इंडिया में आहे. इंडिया में आहे, गंबट इंडिया में आहे, पाकिस्तान में आहे न. हाणे मिसाल तौरु चवंदा हुआ ही वाज़ बॉर्न एट गंबट इन पाकिस्तान. ही वाज़ बॉर्न एट गंबट इन पाकिस्तान. ही वाज़ बॉर्न एट गंबट इन सिंध. सिंध नेम ऑफ प्रोविंस आहे, इन लिखी था सघो. गंबट जे कंपेरिज़न में सिंध वॾी आहे न. 27 ज़िला आहिनि सिंध में. 27 घणा? हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट्स आर इन सिंध? 27. त हाणे इन 29, आई थिंक 29 आहे. त हाणे जेकॾहिं मां लिखां थो त आई वाज़ बॉर्न एट रानीपुर इन पाकिस्तान, त इहो करेक्ट आहे. तंहिंजे करे हिते लिखियलु आहे एल्सा काज़ी वाज़, मिसिस एल्सा काज़ी वाज़ बॉर्न एट वेमर इन जर्मनी. नंबर 2 पॉइंट, शी वाज़ वाइफ ऑफ अलामा आई काज़ी, द लेट वाइस चांसलर ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध. अलामा आई काज़ी सिंध हुयो, सिंधी हुयो बाबा, सिंधी हुयो. सिंध यूनिवर्सिटीअ जो वाइस चांसलर रही चुको आहे. वाइस चांसलर सिंध यूनिवर्सिटीअ जो हाईएस्ट रैंक आहे, हाईएस्ट रैंक आहे, हाईएस्ट रैंक ऑफिसर. उनखां पोइ चांसलर थींदो आहे. चांसलर जेको आहे गवर्नर हूंदो आहे. नंबर 3 पॉइंट, शी मेट अलामा आई काज़ी इन 1907 इन लंडन. हूअ अलामा आई काज़ी सां 1907 लंडन में पैदा थी, मिली, सॉरी. ऐं एंड इन 1910 वाज़ मैरिड टू हिम. 1907 में लंडन में हुननि जी मुलाक़ात थी अलामा आई काज़ी सां. 1910 में हुननि शादी कई. ये ईयर्स यादि कंदव. 1907 में लंडन में मुलाक़ात थी, 1910 में शादी थी. शी वाज़ लिखियल आहे इन 1910 वाज़ मैरिड टू हिम. मतिलबु त शी वाज़ मैरिड टू हिम. हे साल यादि कंदव. 1910 वाज़ जॾहिं इस्तेमालु हूंदो त प्रेपोजिशन टू रखंदव.
जेकॾहिं मैरिड सां सिर्फ़ु हीअं लिखंदव शी मैरिड हिम त करेक्ट आहे, पर जेकॾहिं हीअं लिखंदव शी मैरिड टू हिम इनकरेक्ट आहे। जे हीअं लिखंदव शी मैरिड विथ हिम इनकरेक्ट आहे। टू बी वर्ब इस्तेमालु कंदव शी वाज़ मैरिड टू हिम त इहो करेक्ट आहे। दैट इज़ द ग्रामर पॉइंट, all of you must note it. Number 4 point. Number 4. She helped her husband in writing his book Brown Girl in Search of God. हुन अलामा आए कादी जी मदद कई ब्राउन गर्ल इन सर्च ऑफ गॉड किताब जो नालो हुयो उन में लिखण में। अलामा आए कादी वॉज राइटर स्कॉलर, ही वॉज द मैन ऑफ बुक्स, मैन ऑफ वर्ड्स। त हुन जी मदद कई। हाणे किताब जो नालो छा? ब्राउन गर्ल इन सर्च ऑफ गॉड, भूरी छोकिरी ख़ुदा जी तलाश में। ब्राउन गर्ल जो मतिलबु आहे भूरी छोकिरी ख़ुदा जी तलाश में। हुअं न त ब्राउन खे असां सिंधीअ में नासी चवंदा आहियूं, सही आहे? नासी छोकिरी कोन हूंदी आहे, हूंदी आहे कारी या भूरी, छोकिरो बि हूंदो आहे कारो या भूरो, सही आहे? उहो छा आहे? ब्राउन गर्ल इन सर्च ऑफ गॉड। अहिड़े तरीक़े सां नंबर 4 पॉइंट हुई। नंबर 5, शी डाइड इन हैदराबाद on May 28, 1967। 28 मई 1967 में हैदराबाद में वफ़ात करे वे। अलामा आए कादी सां लंडन में मिली, 1910 में शादी कयनि, हुई जर्मनीअ जी, हलिया या सिंध। शादीअ खां पोइ अलामा आए कादी सां सिंध में रही ऐं उन खां पोइ अलामा आए कादी पहिरियों वफ़ात करे वियो, पोइ हीअ वफ़ात करे वई ऐं 28 मई 1967 में हिन वफ़ात कयो हैदराबाद में। and buried beside her husband at the Sindh University campus जामशोरो। ऐं हिन खे दफ़न कयो वियो पंहिंजे मुड़ुस जे भरिसां क़बर में, जेका हुनजी क़बर हुन जे भरिसां, हुनजी क़बर किथे हुई? सिंध यूनिवर्सिटी जे कैंपस जामशोरो में हुनजी क़बर हुई। जीअं हाणे ॿुधूं था त हे जेको IBA जो चेयरमैन निसार सिद्दीकी वफ़ात करे वियो रिसेंटली ड्यू टू कोरोना। He served for IBA department. He was the former commissioner of Sindh as well. सखर जो कमिश्नर बि रहियो, CSS पास ऑफिसर हुयो, DC खैरपुर बि रहियो ऐं IBA खे हिन पीक ते पहुचायो पंहिंजी हिकिड़ी काविशुनि जे करे। हिकिड़ो he was also man of scholar. Due to corona disease he died two days ago and he was buried in the campus of IBA University सखर due to his services for IBA। त इहो हिकिड़ा माण्हू हूंदा आहिनि जेके पंहिंजे इदारे जे लाइ काविशूं कंदा आहिनि, त उन्हनि खे उन इदारे में ई दफ़न कयो वेंदो आहे। त जीअं दीस आर द आइकॉन्स ऑफ द वर्ल्ड, आइकॉन्स ऑफ दिस इंस्टीट्यूट, दैट इज़ वाई वेरी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ हूंदियूं, तंहिंजे करे उन्हनि खे उन इदारे में ई दफ़न कयो वियो। दे केम टू सिंध इन 1911। 1910 में शादी करे 1911 में सिंध में आया। उन खां पोइ हिते ज़िंदगी गुज़ारियनि ऐं दीस आर द मेन पॉइंट्स रिगार्डिंग टू दिस पोयम्स इंट्रोडक्शन। नाउ आई एम गोइंग टू स्टडी Number 1 stanza, my lovely name that intercepts sun's scorching beam, yet bears the heat all day without the rain's refreshing spray. Now this is the first stanza. I repeat, my lovely name, my lovely name, my lovely son, my lovely daughter, we say। ॾिसो न हाणे इतां ई शुरूआती ईअं थी थिए, मिसेस एल्सा कादे ईअं थी चवे माय लवली नेम, माना नेम माना सम्झो त कंहिं माण्हूअ जो नालो आहे, हुन जी पुट जो नालो आहे, हुन जी धीउ जो नालो आहे। मुंहिंजा प्यारा निम जा वण, मुंहिंजा प्यारा निम, मुंहिंजा प्यारा निम, मुंहिंजा प्यारा काशिफ़, मुंहिंजी प्यारी राणी चवंदा आहियूं न उहा, मुंहिंजी प्यारी नाज़िया, ईअं चवंदा आहियूं। हाणे इहो छा आहे? माना नॉन लिविंग खे लिविंग पेश करणु, इन पॉइंट खे सम्झण जी कोशिशि कयो। मां इन ते थो अचां पर्सोनिफिकेशन ते। त स्टार्टिंग ई हिन जी अहिड़ी आहे, माय लवली नेम, माना इंट्रो यानी हिकिड़ो ख़ुदि कलाम थो करे, ख़ुदि कलाम थी करे। माय लवली नेम दैट इंटरसेप्ट्स सन्स स्कॉचिंग बीम। हियर आर 2 lines मीन्स 1 stanza, 2 lines, 4 lines in 1 stanza, 2 lines। Name and beam are creating a rhyming scheme. Rhythm we can say,
rhythm or rhyming scheme. Rhyming scheme या rhythm माना हुआ हिकिड़ो यानी सेम साउंड प्रोड्यूस कनि वर्ड्स, उचार सेम साउंड प्रोड्यूस कनि, उनखे रिदम चइबो आहे। राइमिंग स्कीम चइबो आहे। रिदमिक लैंग्वेज हूंदी आहे पोइट्री। पोइट्री इज़ अ रिदमिक लैंग्वेज, इट इज़ बेस्ड ऑन डिक्शन एंड मीटर। इहा डिक्शन ऐं मीटर ते मबनी हूंदी आहे। इन में ॿ शयूं पोइट रखंदो आहे। हर को पोइट्री नथो करे सघे, थोरो उसूल हूंदा आहिनि पोइट्री जा, मीटर ऐं डिक्शन। मीटर माना लैंग्वेज में सॉफ्ट वर्ड्स यूज़ करे, रिदम हुजे, ऐं डिक्शन जेको आहे चॉइस ऑफ वर्ड्स, सॉफ्ट वर्ड्स जो चॉइस कयो उनखे डिक्शन चइबो आहे। मीटर माना रिदमिक लैंग्वेज, मीटर हुजे, सिम्फ हुजे। त हीउ जेको माई लवली नेम दैट इंटरसेप्ट सन्स स्कॉर्चिंग बीम, बीम ऐं नेम पाण में सिमिलर साउंड प्रोड्यूस था कनि, माना इहो राइमिंग स्कीम आहे। द वर्ड्स विच प्रोड्यूस सेम साउंड इन द एंड इन अ पोइट्री आर एनी काइंड ऑफ स्टंजा, वी कैन से दैट इज़ रिदम, दैट इज़ राइमिंग स्कीम। मुंहिंजा प्यारा निम जा वण, मुंहिंजो प्यारो निम जो वण जेको सिज जे गरम शुआनि खे रोके थो। बीम्स माना रेज़, हियर इज़ बीम, बीम्स, रेज़, किरणा या शुआ, दैट इंटरसेप्ट सन्स स्कॉर्चिंग बीम। इंटरसेप्ट वर्ड आहे, इंटरसेप्ट माना हाइंडर, हाइंडर स्टॉप, प्रिवेंट, ऑब्स्टेकल, जेको रोके थो सिज जा गरम तरीन किरणा। स्कॉर्चिंग माना छा आहे? वेरी हॉट, तमामु गरम, तमामु गरम किरणनि खे, सिज जे किरणनि खे सन्स स्कॉर्चिंग बीम लिखियल आहे, एपास्ट्राफी आहे। जेको सिज जे गरम शुआनि खे या किरणनि खे रोके थो, इंटरसेप्ट्स थो करे, रोके थो प्रेज़ेंट टेंस आहे। येट बियर्स द हीट ऑल डे, नंबर 3 लाइन तो पढ़ा मां। येट माना हेंस, हिते एज एन एडवर्ब इन कंजक्शन यूज़ थियल आहे। तंहिं करे, तंहिं हूंदे, बियर्स द हीट ऑल डे, बियर माना अफोर्ड, सस्टेन, बर्दाश्त तो करे, सॼो ॾींहुं गर्मी बर्दाश्त तो करे। मुंहिंजो प्यारो निम जो वण जेको सिज जे गरम शुआनि खे रोके थो, तंहिं हूंदे बि सॼो ॾींहुं गर्मी बर्दाश्त करे थो। विदाउट द रेन्स रिफ्रेशिंग स्प्रे, रिफ्रेशिंग स्प्रे means fresh tiny drops of rain. टिनी ड्रॉप्स, नंढड़ा फुड़ा हूंदा आहिनि, मींहुं वसंदो आहे न, फुड़ा वसंदा आहिनि, ड्रिज़लिंग, नंढा फुड़ा, टिनी ड्रॉप्स ऑफ वाटर, टिनी ड्रॉप्स ऑफ रेन, उनखे रिफ्रेशिंग स्प्रे था चऊं। स्प्रे थींदो आहे न भाउ, स्प्रे कयो आहे, मच्छर थी विया आहिनि कमरे में, स्प्रे कयो मोर्टीन जो, चवंदा आहियूं स्प्रे कयो। स्प्रे ईअं आहे जीअं असां जस्ट लाइक परफ्यूम हणंदा आहियूं त इहो स्प्रे थींदो आहे, परफ्यूम, परफ्यूम ईअं स्प्रे। इहो छा आहे? स्प्रे माना उहो पाणी जो जेका फुड़ा निकिरंदा आहिनि, सन्हा निकिरंदा आहिनि, टिनी ड्रॉप्स। त विदाउट द रेन्स रिफ्रेशिंग स्प्रे, मींहं जे ताज़नि फुड़नि खां सवाइ, दाउ चार्म्स द वॉन्डरर्स वो अवे। चार्म्स माना तव्हां उन्हनि खे फैसिलिटी था ॾियो, चार्म्स था कयो, यानी उनखे ख़ुशि था कयो, हैप्पी था बणायो, गिलेड था बणायो। दाउ, दाउ माना यू, दाउ माना यू। हाणे ॾिसो थोरो दाउ तव्हांखे सम्झायां पोइट्री में। यू, दाए, possessive case your, thine, your, yours। ही सब्जेक्ट आहे, ही possessive case आहे, हीअ बे possessive case आहे। possessive pronoun, possessive adjective में फ़र्क़ु आहे। हाणे चवंदा दाउ चार्म्स माना तव्हां वांडरर्स वर्ड आहे, वांडरर, वर्ड वांडरर आहे। हितां थो लिखां,
हितां वांडरर तो लिखां, वांडरर माना विजिटर, एक्सप्लोरर घुमंदड़ सियाह, सिंधीअ में सियाह सैलानी घुमंदड़। जेतोणीकि तव्हां घुमंदड़नि जा ॾुख दूर कयो था ऐं उन्हनि खे फैसिलिटी सुकून था मुहैया कयो, वो माना ग्रीफ। ग्रीफ या सैड मुसाफ़िरनि जा ॾुख दूर था करें, तव्हां मुसाफ़िरनि जा ॾुख दूर था कयो। वांडरर माना मुसाफ़िर सैलानी, वो अवे ॾुख दूर था कयो। हाणे ॾिसो माण्हू ॾुख दूर कंदो आहे न, असां ईअं माना पढ़ूं था जीअं माण्हू आहे जेको उनखे चवे थी मिसेस एल्सा काज़ी तव्हां मुसाफ़िरनि जा ॾुख दूर था कयो, उन्हनि खे सहूलियत था ॾियो। हाणे केरु थो ॾे? नीम ट्री थो ॾे, पर लॻे ईअं थो असां पढ़ूं था माण्हू जे बारे में था पढ़ूं, माण्हू जूं क्वालिटीज़ आहिनि। विथ सूदिंग शेड, कंफर्टेबल, सूदिंग जो मतिलबु आहे कंफर्टेबल। तव्हांजे बुक में लिखियलु अथव हिन पोयम जे नेक्स्ट पेज ते कंफर्टिंग या कंफर्टेबल, कंफर्टेबल थिंग, कंफर्टेबल शेडो, कंफर्टेबल इमेज, रिलैक्स इमेज। यानी तव्हां पंहिंजे जेका तव्हांजी सूदिंग शेड आहे, शेड माना छांव जेका निम जे वण जी आहे चवेसि थी, तव्हांजी जेका छांव आहे न उहा कंफर्टिंग आहे, कंफर्टेबल आहे, कंफर्टिंग आहे, सुकून ॾींदड़ आहे मुसाफ़िरनि खे। मुसाफ़िर उस में पंधु थो घुमे, पुराणो दौरु आहे ज़माने जो जंहिंमें गाॾियूं कोन्हनि, खे पंधु माण्हू सफ़र कंदा हुया। हाणे निम जो वणु ॾिठो त वण जे हेठां वेही रहियो आहे, हुनखे सुकून वारी छांव मिलंदी न, सूदिंग शेड मिलंदी, त उनजे लाइ चवेसि थी त केॾो न मुंहिंजो प्यारो निम जो वणु जेको सिज जे गरम तरीन शुआनि खे रोके थो, तंहिं हूंदे सॼो ॾींहुं गर्मी बर्दाश्त थो करे सिज जी, मींहं जे ताज़नि फुड़नि खां सवाइ मींहुं नथो वसे, उस लॻी पई आहे तॾहिं बि गर्मी बर्दाश्त थो करे। पोइ बि तव्हां मुसाफ़िरनि जा ग़म दूर था कयो पंहिंजी पुरसुकून छांव सां, मुसाफ़िरनि खे सुकून था ॾियो पंहिंजे पुरसुकून छांव सां। दैट इज़ द क्वालिटी ऑफ नीम ट्री। हाउ स्ट्रांग यू आर, हाउ अनअफ्रेड, वधीक चवेसि थी सेकंड स्टेंजा में तव्हां केॾा न बहादुर आहियो, केॾा न मज़बूत आहियो। स्ट्रांग माना मज़बूत, अनअफ्रेड माना बोल्ड, बहादुर। हाउ ग्रीन दाई लीव्स, ॾिसो दाई लिखियलु आहे पज़ेसिव केस जेको मां लिखियमि, मीन्स यूअर लीव्स इन स्पाइट ऑफ ऑल, केॾा न तव्हांजा पन सरसब्ज़ आहिनि, सावा आहिनि। इन स्पाइट ऑफ ऑल द मिड डे फ्लेम्स दैट बर्निंग फॉल, मंझंदि टाक जा सिज जा बर्निंग फॉल, सिज जा जेके बाहि वांगुरु गरम शुआ आहिनि उहे ॿरंदड़ तुंहिंजे मथां किरनि था, बर्निंग फॉल था थियनि, ॿरंदड़ शुआ किरणा तुंहिंजे मथां किरनि था, पोइ बि तुंहिंजा पन केॾा न सावा आहिनि। हाउ ग्रीन दाई लीव्स, तुंहिंजा पन केॾा न सावा आहिनि। दाई मिड डे फ्लेम्स दैट बर्निंग फॉल अपॉन दाई अनप्रोटेक्टेड हेड, तुंहिंजे मथे ते त किरनि था पर तुंहिंजो मथो अनकवर्ड आहे, ढकियल न आहे, अनप्रोटेक्टेड आहे, तुंहिंजे मथे जे मथां प्रोटेक्शन कोन्हे का। निम जो वणु खुलियलु हूंदो आहे भाउ उस में, को बि वणु हूंदो आहे उहो खुलियल ई हूंदो आहे, उनजे मथां खां प्रोटेक्शन त कोन हूंदी आहे। असां मथे ते टोपी पाईंदा आहियूं गर्मीअ खां बचण जे लाइ, ट्रॉल रखंदा आहियूं, कपिड़ो रखंदा आहियूं, त इहा क्वालिटी आहे नीम ट्री जी। इट मीन्स नीम ट्री अफोर्ड्स आर बियर्स द स्कॉर्चिंग बीम्स ऑफ सन in the midday flames, even flames, burning flames, it bears, but it wanders woe away. It relax, it provides comfortable shade to visitors. It provides comfort to visitors. Being unprotected head, having unprotected head, she suffers, she bears, or it suffers, it bears the scorching beams of sun throughout the day, all the day. But that is the sacrifice of neem tree for human beings. That is the quality of sacrifice. You are suffering and you provide comfort to others. That is sacrifice. So that is the element of sacrifice of neem tree. Baba, your neem tree असांखे हिते क़ुर्बानीअ जो जज़्बो
असांखे ऐं क़ुर्बानी जो मैसेज थो ॾिए, या क्वालिटी आहे नीम ट्री जी। दीज आर द क्वालिटीज़ ऑफ नीम ट्री विच वी कैन फाइंड इन ह्यूमन बींग्स। मिसिस एल्सा कादी चवे थी नीम ट्री में जेके क्वालिटीज़ आहिनि इंसाननि खे उहे क्वालिटीज़ एडॉप्ट करणु घुरिजनि, उहे ख़ूबियूं इंसाननि खे पाण में पैदा करणु घुरिजनि जेके नीम ट्रीअ में आहिनि, तंहिंजे करे पर्सोनिफिकेशन में लिखियलु आहे। So the remaining 2 stanzas we will study in our next lecture. So I sum up here. See you again. Allah Hafiz.